Now I request Reverend Dr. Ray Pofam to come forward and to have blessing prayer over the graduates. Now may the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of an everlasting covenant, may he perfect you in every good work to do his will, working according to his pleasure and his sight through Christ Jesus, to whom be glory forever and ever. Amen. Hebrews 13, 20 and 21. अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो बेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको बाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। Amen. I charge you to take the education you've received and teach others. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शिक्षा आपने यहाँ से पाई है उसको आप दूसरों को सिखाएं। I charge you to take the love you have received and spread it to others. जो प्रेम आपने यहाँ से प्राप्त किया है वो आप दूसरों तक फैलाएं। It is my great honor and privilege to declare you officially graduated. मेरे लिए बहुत ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि मैं ऑफिशियली आपको ग्रेजुएट्स घोषित कर पाया। May God bless you mightily. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Let's give a round of applause to the graduates. सब मिलकर इनके लिए ताली बजाएं। You may be seated. आप सब लोग बैठ जाइए। I'm just going to walk over here. 24 years ago, under these trees back here, KG Esau and I spoke to our first students. आज से 24 साल पहले यहाँ पर एक पेड़ के नीचे मैं और डॉक्टर केजी ईशो इसी प्रकार से हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट से हमने बात करी। If I remember correctly, there were only 12. यदि मुझे ठीक से याद है तो उस समय उनकी संख्या केवल 12 थी। That's about the same number as those with their MDiv and the blue robes. और वो उनकी संख्या केवल इतनी थी जितने यहाँ पर हमें नीले रंग के कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। And now today, you included in graduations make over 1,300 that we have graduated. और आज जितने लोग यहाँ पर ग्रेजुएट हुए हैं उन सबको मिलाकर के जो कुल संख्या बनती है वो 1300 के करीब बन जाती है। It was a very small endeavor when we began. ये बहुत ही छोटा सा एक कार्य था जब हमने इसकी शुरुआत करी। There were not many resources or many people to help. हमारे पास बहुत सारे साधन नहीं थे और बहुत सारे लोग नहीं थे हमारी मदद करने के लिए। The property in the area that you're sitting on wasn't even a part of the original vision. और ये जगह जहां पर आप लोग अभी बैठे हुए हैं ये भी उस समय हमारे पास नहीं थी। In 1995 in the United States, KG Esau and I met under a tree in a backyard of a friend's house. 1995 में यूएसए में हमारे एक दोस्त के घर के पीछे एक पेड़ के नीचे मैं और डॉक्टर केजी ईशो मिले थे। Immediately God knit our hearts together as one. और उसी समय परमेश्वर ने हम दोनों के हृदयों को एक साथ जोड़ दिया। My family became as his family became as my family. मेरा परिवार उनका परिवार बन गया और उनका परिवार मेरा परिवार बन गया। He began to share with me the vision that he was having for India. और जो दर्शन उनके दिल में था भारत के प्रति वो मेरे साथ बांटना उन्होंने शुरू किया। And I had shared with him the vision that I had to help raise up leaders around the और world. मैंने अपना दर्शन जो मेरा है दुनिया के कोने कोने से अगुओं को उठाना और आगे बढ़ाना मैंने उनके साथ बांटा। And we began to pray together and talk together about how we could work together to do what this is today. और हम दोनों एक साथ बात करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि किस प्रकार हम मिल करके इस काम को आगे कर सकते हैं। Santosh was just a young boy. उस समय संतोष एक जवान लड़का था। Saju was a young boy, only bigger. शाजू उनसे थोड़े बड़े थे, वो भी जवान लड़का था। And I was a very young man. और मैं उस समय बहुत ही जवान आदमी था। And I'd come here to Barwa and we would travel back and forth to the house, the government house, on a motor scooter. और जब मैं यहाँ पर आता था तो डॉक्टर केजी ईशो के साथ उनका जो सरकारी मकान था वहाँ से लेके यहाँ तक हम मोटरसाइकिल में आया जाया करते थे। And many nights we would sit on the roof of the building here when it was only one story and then two and then three. और जब ये पहले जो इमारत आप देख रहे हैं जब वो एक मंजिला इमारत थी तो हम उसकी छत पर बैठा करते थे।
And we would look out over the fields around Badwa where nothing was built. और बड़वा के आसपास के खेतों में हम देखा करते थे और यहाँ पर उस समय कुछ भी नहीं बना हुआ था। And we would talk about the possibilities of what could happen in India. और फिर हम उन संभावनाओं के बारे में बात करते थे जो संभावनाएं हमारे देश में हो सकती थी। We would pray for one another's families and for one another in the ministry. और हम एक दूसरे की सेवकाई के लिए और एक दूसरे के परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना किया करते थे। We would talk about the ups and the downs in the apostolic ministry. हमारी प्रेरिताई की सेवकाई में जो उतार चढ़ाव आते थे उनके बारे में हम चर्चा किया करते थे। And we would encourage each other to keep pressing forward in the faith. और हम एक दूसरे को उत्साहित करते थे कि हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। And then we would go enjoy a very special treat only in Badwa. Then we would go enjoy a very special treat only in Badwa. और बड़वा के अंदर एक खास चाय जो है फिर हम उसका आनंद लेते थे। We would go down into town and have a badam shake. और फिर उसके बाद हम शहर में जाते थे और वहां से बादाम शेक का हम आनंद लेते थे। And he would always push me and force me to take a second one. और वो हमेशा मुझे जोर देते थे कि मैं दूसरा ग्लास भी लूं। It was his custom as we went back and forth. इसी तरह से जब हम मिला करते थे तो ये उनकी आदत थी। Today my heart is filled with such joy आज मेरा दिल आनंद से भरा है to see that the work that was begun is not only going forward, it's expanding so rapidly and greatly. कि जो काम हमने शुरू करा था वो केवल आगे ही नहीं बढ़ रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा फैल भी रहा है। There's a story in the Old Testament where Moses told Aaron to give direction to his sons. पुराने नियम में हमें कहानी देखते हैं जहां पर मूसा जो है वो आरोन को अपने बच्चों को दिशा निर्देश देने की बात करता है। Aaron's sons were responsible for making sure that there was fire on the altar every day so that they could do the sacrifices. आरोन के पुत्रों की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को देखें कि वेदी के आसपास और वेदी के बीच में पर्याप्त आग है ताकि उन बलिदानों को उन विधियों को किया जा सके। And God told Aaron to tell his sons that they were to make sure that the fire never went out on that altar. और परमेश्वर ने आरोन से कहा कि आपको अपने पुत्रों को ये बताना है कि वेदी के अंदर से वो आग कभी भी खत्म ना होने पाए। He said every day, 24 hours of day, they were to make sure that the fire was kept burning on that altar. प्रतिदिन 24 घंटे उनको ये बात का निश्चय करना जरूरी था कि वो आग हमेशा जल रही है। He told them every morning to remove the ashes from yesterday and make sure that there was a fresh fire. और उनको कहा गया था कि हर दिन आपको जो पिछले दिन की राख है वहां से वेदी से वो हटानी है और नई आग को वहां पर जलाना He है। said it was their responsibility to always make sure that that fire kept burning inside of that altar. ये उनकी जिम्मेदारी थी इस बात को श्योर करना कि वो जो आग है वेदी के अंदर वो हमेशा जलती रहे। When I was a young boy, I learned this lesson from my father. जब मैं एक जवान लड़का था ये सबक मैंने अपने पिताजी से सीखा। We would heat our home with wood in a fireplace. और हमारे घर में वो जो आग के लिए लकड़ियां हम लोग इकट्ठा करते थे। And when my dad would leave for work in the morning, he would call me by my name. और जब मेरे पिताजी सुबह काम में जाने से पहले मेरे नाम से मुझे बुलाएंगे। And he would say, "Son, whatever you do today, make sure you keep putting wood on this fire so this fire doesn't die out." और वो मुझे कहते थे कि आप जो भी करते रहें उसके दौरान इस बात को कभी ना भूलें कि आप इस आग में लकड़ियों को डालते रहें ताकि ये आग जलती रहे। He said, "Because son, it is easier to keep a fire stirred than it is to try to start a new fire." उन्होंने कहा कि ये बहुत ही आसान काम है कि हम उस आग को जलता रहें बजाय इसके कि एक नई आग को हम जलाएं। And my father taught me that it's better to stir a fire than it is to have to start a fire anew. एक नई आग को जलाने से बेहतर है कि हम जो आग जल रही है उसको जलाते रहें। That's what God was telling Aaron's sons. Make sure you always keep this fire burning, keep stirring it all the इसीलिए time. हारून के पुत्रों को कहा गया था कि आपको इस बात का निश्चय करना है कि वो आग हमेशा जलती रहे। Your education has started a fire in you, but it is up to you to keep that fire stirred. शिक्षा जो आपको दी गई है उसने आपके अंदर एक आग को जलाया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस आग को जलाते रहें। What you have learned has started a fire inside of your heart for leadership and for the work that you will do. आपने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा ने एक सेवकाई की आग को आपके अंदर जलाया है। But it is your job to make sure you keep stirring that fire all the time. लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस आग को बरकरार रखें। The school will not be here to stir that fire. The school will not be here to stir that fire. आपका स्कूल आपके साथ नहीं होगा उस आग को बरकरार रखने में। Teachers will not be here to stir that fire. आपके शिक्षक आपके पास नहीं होंगे उस आग को बरकरार It will रखने be के लिए। your job to make sure you keep stirring that fire ये inside of आपकी you. जिम्मेदारी है इस बात को निश्चित करें कि वो आग
Thank you, Baljit Bhai, for the wonderful translation. God bless you. तो अब मैं अनुरोध करूंगा अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन इवांजल बलजीत सिंह। अभी समय है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आज ग्रेजुएट हुए हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हर साल हम कुछ खास अवार्ड जो हैं हम उनको देते हैं। ये अवार्ड जो हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनके बिहेवियर को देखते हुए, उनके चरित्र को देखते हुए उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इस साल भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम ये अवार्ड देना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर रे परफॉर्म टू कम एंड गिव अवे द अवार्ड्स टू आवर स्टूडेंट्स। और सबसे पहले हमारा जो अवार्ड है वो है एमडिव कोहॉर्ट क्लास के लिए, और पहला अवार्ड है बेस्ट कैरेक्टर के लिए। सबसे अच्छा चरित्र अपनी 2-3 साल की पढ़ाई के दौरान जो स्टूडेंट अपना अच्छा चरित्र हमें दिखाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को ये अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट कैरेक्टर का अवार्ड। और इस अवार्ड के लिए मैं अनुरोध करूंगा पास्टर दामर रावत से। प्लीज ताली बजाइए, पास्टर दामर रावत के लिए ये अवार्ड है बेस्ट कैरेक्टर का। और दूसरा अवार्ड है हमारे पास बेस्ट एकेडमिक के लिए। ये अवार्ड उस स्टूडेंट को दिया जाता है जिसने अपनी पढ़ाई के दौरान अपने जो एग्ज़ाम है, अपनी जो क्लासेस हैं, उनमें बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस करा हो और बेस्ट नंबर से वो लोग पास हुए हैं, डिग्री लिए हैं। उस स्टूडेंट को ये अवार्ड दिया जाता है बेस्ट एकेडमिक का, और ये अवार्ड दिया जाता है प्रेसी सैम को। प्लीज ताली बजाइए प्रेसी सैम के लिए बेस्ट एकेडमिक का अवार्ड। और अगला अवार्ड है बेस्ट स्टूडेंट का, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का। ये अवार्ड उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को दिया जाता है जिसने अपनी पढ़ाई के दौरान ओवरऑल सारे कामों में अपने आप को एक बहुत ही अच्छी रीति से प्रस्तुत करा हो, एक नमूने के रूप में परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को उसने प्रस्तुत करा हो। ये अवार्ड जो है उस स्टूडेंट को दिया जाता है। और बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड एमडिव कोहॉर्ट क्लास में से जाता है मिस्टर बीनू डीगल को। प्लीज ताली बजाइए बीनू के लिए। इसी तरह से 3 अवार्ड जो हैं वो बीटीएच स्टूडेंट्स के लिए भी दिए जाएंगे। और बीटीएच क्लास में से बेस्ट कैरेक्टर का जो अवार्ड है वो दिया जाता है सादक सुनामाजी को। अगला अवार्ड है बीटीएच ग्रेजुएट्स के लिए बेस्ट एकेडमिक का, उस स्टूडेंट के लिए जिस स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा है, सारे एग्जाम में से अच्छे नंबर लेकर के वो पास हुआ है, टॉपर है अपनी क्लास का। बेस्ट एकेडमिक अवार्ड गोज टू मिस्टर मकाराम बामने फ्रॉम बीटीएच 3rd। Thank you, Pastor Santosh and Dr. Ray. Now I would request dear Subhash sir to help us in giving away the awards to the rest of the students. अगला अवार्ड जो है बीटीएच क्लास से बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड वो जाता है बीटीएच 3rd से मिस्टर किशोर प्रधान को। प्लीज ताली बजाइए सब लोग मिस्टर किशोर प्रधान।
और हमारे आंध्र प्रदेश के बाइबल कॉलेज जो हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसी तरह से अवार्ड दिए जाएंगे। और हमारे आंध्रा के तेनाली कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट कैरेक्टर का अवार्ड जो है डीटीएच क्लास में से वो जाता है कोटेश्वरा राव को। Next award is the Best Academic Award, and this award goes to S.N. Mali. The next award is for the best student from BTH, and it goes to V. Siva Krishna. कोने में गुंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गुंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। खून की धारा बह रही है सुली से सारे जहां में, खून की धारा बह रही है सुली से सारे जहां में। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। भूलो तुम अपने सारे पापों को, पाओ तुम शिफा जहां में। भूलो तुम अपने सारे पापों को, पाओ तुम शिफा जहां में। प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। हमें दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, हालेलुया, दुनिया में हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में मिलकर
जोरदार ताली बजाए। गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। हमें कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। बोलो कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। Thank you, choir team, for the lovely song. Now, हमारे बीच में पधारे हैं कि रेवरेंड डॉक्टर सुभाष पानवार, आप इंदौर कन्वेंशन में आकर अच्छे पैमाने में तो भाषण दिया था और इस समारोह में भी आपको निमंत्रण किया। कल शाम को आप पधारे हैं। अब 20 मिनट आप हमसे जैसे ब्लेसिंग वर्ड्स फॉर द ग्रेजुएट्स उस विषय के आधार पर हमसे बातचीत करेंगे। प्रार्थना के साथ बैठे मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। तालियां। Thank you, Dr. Ray, Dr. Santosh, Reverend Shaju, all the members of faculty, graduated students now, I should say. सारी जमात कलीसिया, मैं आप सबको सबसे पहले बधाई देता हूं। आपकी प्रार्थनाओं का आज यहाँ परिणाम देखने को मिला है। परमेश्वर ने आपकी मेहनत को सफल किया है और आज आप, और मैं कहता हूं कि दुनिया में कलीसिया के अंदर इससे ज्यादा सुंदर दृश्य और कोई नहीं हो सकता है। एक कलीसिया यही चाहती है कि वो परमेश्वर की ओर से सारी दुनिया तक पहुंच सके। A church always wants to reach out unto the world, and I said this could not be or cannot be, there cannot be more than this, a beautiful scene in a church. कि आपकी हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुना है और आज ये इतने जवान परमेश्वर की सेवा के लिए यहाँ से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, इनमें से बहुत सारे दुनिया के दूसरे देशों में भी परमेश्वर की सेवा के लिए जा सकते हैं, जाएंगे। मुझे कहा गया है जैसे ब्लेसिंग के वचन कहूं, तो मैं सोच रहा था, परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, परमेश्वर जब भी किसी को बुलाता है सबसे पहले बुलाहट देता है और बुलाहट के साथ परमेश्वर उनको तैयार करता है। तैयारी के बाद उनको एक कमीशन देता है और कमीशन के बाद आशीष देकर भेजता है। When God calls somebody, the first thing in his life or in her life is God's call. Number two, God never sends anyone without preparing them. That is training which you have just completed, जो अभी आपने पूरी की है। और तीसरी चीज है, परमेश्वर एक कमीशन दे करके भेजता है। और चौथी चीज है, वो बिना आशीर्वाद के नहीं भेजता है। आज आपको यहां मेरा ही नहीं, पूरी फैकल्टी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, आपके सारे शुभचिंतकों के आशीर्वाद आ रहे हैं। और अगर आप पूछेंगे डॉक्टर संतोष से, तो उनके फोन पर, ईमेल में, एसएमएस में या व्हाट्सएप में सैकड़ों ब्लेसिंग्स आप सबके लिए आ चुकी हैं। यह भी बहुत जरूरी है कि आप आशीर्वाद के साथ जाएं, क्योंकि आशीर्वाद एक वो कवर है, आशीर्वाद एक वो सुरक्षा का कवच है जो आपको हर जगह रक्षा करेगा, जो आपको आशीषों के लिए तैयार करेगा, जो आप पर शैतान के हमलों को रोकेगा, बचाएगा। और ये आशीर्वाद आपके हर काम में आपको सफल करेगा, क्योंकि ये आपको आशीष है, आपको सफल होने की आशीष है।
आपको बढ़ने फलने फूलने की आशीष है, आपको दूसरों के लिए आशीष बनने की आशीष है। हमारे पूर्वज जब मिस्र से निकल करके आ रहे थे, उनको भी आशीष के साथ परमेश्वर ने भेजा। आप देखते हैं गिनती की पुस्तक में आगे चलकर, एक राजा जब उनसे डर गया और उसने सुन लिया कि इनको लड़ाई करके कोई हरा नहीं सकता, उसने सोचा एक फार्मूला, अगर इनको श्राप दे दिया जाए तो शायद मैं इनसे जीत सकता हूं लड़कर। उसने एक नबी को ढूंढ निकाला और वो श्राप देने के लिए आनाकानी करते हुए तैयार हो गया। लेकिन जो वो श्राप देने के लिए अपना मुंह खोलता है, वो कहता है परमेश्वर इन्हें आशीष दे चुका और मैं पलट नहीं सकता। हालेलुया। अगर बात समझ में आई हो तो ताली बजाएं ईश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है और आप निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाइए। और किस लिए जाइए? प्रभु यीशु के शब्दों में अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, लिखा है पके खेत बहुत हैं, आपको फसल पकाने की आवश्यकता नहीं है। खेत पक चुके हैं और खेत बहुत सारे हैं। ऐसे नहीं कि किसी के लिए खेत की कमी हो। आप में से जितने भी सेवक आज निकल रहे हैं, अगर हजारों हजारों और भी आज की तारीख में निकलेंगे, किसी के लिए भी खेत की कमी नहीं होगी। हालेलुया। और खेत का स्वामी आज भी यही विनती कर रहा है कि मजदूरों को भेजे। कहता है देखो मैंने तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी के घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारें, जो कुछ तुम्हारे सामने रखें वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और पर उनसे कहो परमेश्वर का राज्य निकट तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उनके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो तुम्हारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो अब ये जान लो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। परमेश्वर है जो हमको भेज रहा है और परमेश्वर आपको आज भेज रहा है और परमेश्वर आपको इस संसार के लिए एक उत्तर बनाकर भेज रहा है। आपने सुना है प्रचारक कहते हैं जीसस इज द आंसर, बट जीसस हैज मेड यू द आंसर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के समस्याओं के लिए यीशु ने आपको उत्तर बनाया है। लोग बीमार हैं, आप उनकी चंगाई का उत्तर हैं। दुनिया के डॉक्टर नहीं, आप उनकी चंगाई का उत्तर हैं। लोग समस्या में हैं, आपकी प्रार्थना उनके लिए समाधान है। लोग मुसीबत में हैं, निराश हैं, आप उनके लिए शांति का उत्तर हैं। तो इस नाश होते हुए संसार में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है और आपको यह कमीशन दिया है, यह आदेश दिया है और इसे महान आदेश कहते हैं। सारे जगत में जाओ और जो कुछ प्रभु के दासों ने तुम्हें सिखाया है, तुम्हारे अंदर जमा किया है, उसे जाकर उन्हें सिखाओ और उन्हें चेला बनाओ। और जो विश्वास करेगा उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दोगे। अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखना है। यह नहीं कि ग्रेजुएट हो गए हैं, हमने पढ़ना खत्म कर दिया है, आज के बाद बाइबल छूना बंद। नहीं, आज से तो ज्यादा पढ़ाई शुरू होती है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, बाइबल कॉलेज से निकलने के बाद मैंने ज्यादा बाइबल को सीखा है। बाइबल कॉलेज से निकलने के बाद मैं ज्यादा मेरी समझ में आया। वहां तो उतनी समझ में नहीं आया था जितना उसके बाद मुझे समझ में आया है।
तो कोई खड़ा होकर ये ना कहे बिना तैयारी के, बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना किए प्रचार के लिए खड़ा हो जाए, मुझे तो ऊपर से रेवलेशन मिलता है, मुझे तो सरमन सीधा ऊपर से मिलता है। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो जो सरमन देता है, जो प्रेरणा देता है, जो सहायता करता है, लेकिन पूरी तरह अपना बिस्तर बांध करके ऐसे न सोते रहें, कल संडे है, कल प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा। परमेश्वर के वचन के साथ हो जाइए, उसे पढ़िए, उसे समझिए, कमेंट्रीज को भी पढ़िए, जो कुछ परमेश्वर के दासों ने सिखाया उसको भी पढ़िए और फिर से उसको अध्ययन कीजिए पूरी तैयारी के साथ। पौलुस कहता है अपने आप को स्टडी thyself टू शो और अप्रूव्ड, और कि आप शर्मिंदा ना हो। बहुत सारे लोग पुलपिट में खड़े होकर शर्मिंदा हो जाते हैं। पहली बार जब मेरे सीनियर ने मुझसे कहा कि ये संडे, मैं बाइबल कॉलेज में था SABC बैंगलोर में, उसने मुझसे कहा ये संडे मैं नहीं जा सकूंगा, क्या आप मेरी जगह प्रचार करने जाएंगे? मैं भी ऑलरेडी इंग्लिश का MA इंग्लिश करके गया था और फर्स्ट ईयर में था। मैंने सोचा इतना प्रचार तो सुन चुका हूं, 1-1.5 घंटे की सर्विस है, आराम से लेके आ सकूंगा। मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा। वहां पर गए, वो एयरफोर्स की एक चैपल थी, यलहंका एयरफोर्स में चैपल थी, और मैंने जाकर के सर्विस शुरू की और सारी सर्विस, सारा गाना, मेरी गवाही, मेरा प्रचार 20 मिनट में खत्म हो गया। लोग कहने लगे अच्छा प्रचारक भेजा, आज तो चर्च बहुत जल्दी खत्म हो गया। मैं आया बड़ा उदास और निराश, अपनी सारी डिग्री को उठाया और चैपल में जाकर के पुलपिट में रख दिया। मैंने कहा परमेश्वर, मेरी योग्यता से, मेरी पढ़ाई से आज मैं एक कलीसिया में आराधना पूरी नहीं लेने पाया। अब मैं परमेश्वर से अनुग्रह पाकर, परमेश्वर से अभिषेक पाकर मैं जाना चाहता हूं। 1 महीने बाद उस प्रभु के दास ने फिर पूछा क्या वहां दोबारा जाओगे? मैंने कहा मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जाऊंगा। मैं वहां पर गया और पूरी 1.5 घंटे की आराधना मैंने ली। सो प्रियो, हम अपनी योग्यताओं के, मैंने BTH किया है, इनके बल पर के मैंने ये पढ़ाई की है और ये अनुभव पाया है, इसके बल पर दुनिया में जाकर भलाई का काम नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रेरणा और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर ना होगा। We need to receive this anointing every day on our knees, in our rooms. हमारे घर में, हमारे कमरों में परमेश्वर के सामने ठहरते हुए ये अभिषेक हमको रोज परमेश्वर से पाना है। कहना प्रभु तू मुझे भेज, तेरे अभिषेक से मुझे परिपूर्ण कर और स्वर्ग से मुझे संदेश दे, मुझे तेरे लोगों से क्या कहना है, और वही बात उन तक पहुंचाएं। जैसे पौलुस कहता है जो बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं भी तुम्हें पहुंचा देता हूं। Only speak the words that you receive from God, and this is the word of God that speaks to you, and through this God speaks to us. परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है, इसलिए अपने आप को तैयार करते रहें। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। परमेश्वर आपके द्वारा इस दुनिया को छूना चाहता है। परमेश्वर ने आपको ठहराया है। God is anointed you. जिस प्रकार हमारे ऊपर शासन करने के लिए, हमें आशीष बनने के लिए, हमारे देश में सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए हमारी सरकारें हैं, सरकारों में हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आपको किसी ने वोट डालकर नहीं चुना है। God has picked you up. परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिन्हें हम वोट डालकर चुनते हैं, बाइबल कहती है वो भी परमेश्वर के चुने हुए हैं। जिन्हें हम वोट डालकर चुनते हैं वो भी परमेश्वर के चुने हुए हैं, और वो भी हमारे सामाजिक जीवन की बेहतरी के लिए, हमारे आर्थिक जीवन की उन्नति के लिए, हमारे समाज में शांति के लिए, और इसी तरह आपको परमेश्वर ने लोगों के लिए शांति के दूत बनाकर तैयार किया है।
आपको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने के लिए, लोगों को बीमारियों से चंगा करने के लिए, लोगों के जीवन शांति से भरने के लिए, परमेश्वर हर एक के जीवन में क्या कहता है वो संदेश आपके द्वारा लोगों को पहुंचाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। इस बुलाहट के साथ, इस तैयारी के साथ और इस महान आदेश के साथ जाइए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। किसी ने कहा, इफ यू वांट टू रिसीव एन अपॉर्चुनिटी मेक ए डोर। यदि आप अवसर चाहते हैं तो दरवाजा बनाइए। अवसर जो है दरवाजे को आकर खटखटाता है। इसका मतलब है आपके जीवन में उन बातों के लिए इच्छा होनी चाहिए, आपके जीवन में उन बातों के लिए सपने होने चाहिए, आपके जीवन में कार्यों की योजना होनी चाहिए। परमेश्वर उन पर आशीष करता है। परमेश्वर पहले आपके दिल में सपने डालता है, फिर उनमें प्रभाव डालता है, फिर उनको पूरा करता है। लेकिन आपको उन सपनों को देखकर उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ हाथ मिला करके खड़े होना जरूरी है। यशाया 55वां अध्याय जाकर के आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहां परमेश्वर आपको बुला रहा है उसकी आवाज सुनने के लिए। रोज परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने बिस्तर से उतरिए। Never leave your bed before listening or without listening to what God says for this day to you. परमेश्वर आपसे आज के लिए क्या कह रहा है, परमेश्वर आप क्या चाहता है, उसकी आवाज सुने बिना अपने बिस्तर से बाहर ना निकलिए। लेकिन जल्दी, यीशु भी बड़े सवेरे अर्ली मॉर्निंग वो प्रार्थना के लिए चलाया जाया करता था। हमारा मल्ल युद्ध, हमारा संघर्ष हमारी प्रार्थनाएं से शुरू होता है। हमारा संघर्ष हमारे जीवन में प्रार्थना से शुरू होता है। प्रभु का जो सेवक प्रार्थना को निग्लेक्ट करता है, प्रार्थना का जीवन की उपेक्षा करता है, हम उससे कोई सफलता की आशा नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रार्थना का जीवन, किसी ने कहा 3 बातें सेवकाई में इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 प्रार्थना और नंबर 3 प्रार्थना। प्रार्थना की जीवन को उपेक्षित न कीजिए। परमेश्वर ने आपको जो दान और वरदान दिए वो प्रार्थना से ही चमकेंगे, उनमें प्रार्थना से धार आएगी और प्रार्थना आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में संभाल कर रखेगी। प्रार्थना आपको सामर्थी बनाएगी, प्रार्थना आपकी सेवा को चमकाएगी, प्रार्थना आपके लिए रास्ते खोलेगी, प्रार्थना आपके मार्गों से कठिनाइयों को दूर करेगी, प्रार्थना शैतान और उसकी सारी सेनाओं को आपके जीवन से दूर करेगी। प्रार्थना को अपनाए रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देता हूं और मेरी प्रार्थना आपके लिए यही है, परमेश्वर आपको आपकी बुलाहट में पूरी तरह कामयाब करे और इस तरह बहुत सारे ग्रेजुएशंस और उनके सफलताएं हम अपने जीवन में देखकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सब आशीष दे।